Jai Hind to all of you, my dear student. Once again, I Bipin sir, PGT English of SRPS, welcome you to the online class of English Literature. These classes are being delivered by Shri Ram Public School, Basti. So, my dear student, today in my class, I am here with class 11th, the summary of Portrait of Lady. Today, I will tell you about the summary of the chapter A Portrait of Lady, which has been taken from your book Hornbill, as you all know. So my dear student, without any delay, let us start the summary. The summary of the chapter, as all of you know that this chapter has been written by Khushwant Singh. Khushwant Singh is an Indian writer. So in this story, what happens? First of all, the portrait of a lady is written in first person and is in the biographical mode. So this story is written by a writer who, the Khushwant Singh himself is the narrator of the story, and this story goes on to the turn of the first person and it is in the biographical mode. Biographical mode means a kind of a story in which a story related to a person is given. Account of a person is given. It is known as a biography. So biographical mode means it is a story which is related to the writer, which relates to the writer. So what happens in this story? In this story, the writer gives a detailed account of his grandmother with whom he had a long association. In this story, a writer gives a detailed account of his grandmother, the grandmother with whom he was having a deep bonding with his grandmother. So he narrates the story about the relationship of his grandmother and him, what happened in this story, all the things he told us about his grandmother. So that she was a short lady, she was fat lady and she was slightly bent. Slightly bent का मतलब होता है हल्की सी झुकी हुई. तो उनकी ग्रैंडमदर जो दादी माँ थी वो थोड़ी सी नाटी थी, मोटी थी और हल्की सी झुकी हुई थी. Her silver hair was scattered untidily on her wrinkled face. उनके जो silver hair थे, the hair which were in silver color, they were all spread on to her face and her face was wrinkled. Wrinkle मतलब झुर्रीदार चेहरों पर उनके जो चेहरे होते हैं, जो झुर्रीदार होते हैं, तो उनके जो झुर्रीदार चेहरे होते हैं उनके चेहरों पर चारों तरफ उनके बाल बिखरे होते हैं. She hobbled around the house in white clothes with one hand resting on her waist and other telling the beads of her rosary. उनकी दादी माँ पूरे घर में चला करती हैं और सफेद कपड़े पहनी रहती हैं. एक हाथ उनका हमेशा उनके कमर पे रहता है और एक हाथ से वो हमेशा मनकों को फेरा करती हैं. एक माला होती है जो तुलसी की माला समझ लो, तो भगवान का नाम जपने वाली जो माला होती है, तो डेट वो रोजरी माला बेडिंग उसको बीड्स को हमेशा फेरती रहती हैं. Khushwant Singh remembers her as not very pretty but always beautiful. Khushwant Singh उनको याद करते हैं और याद करते हुए ये कहते हैं कि उनकी दादी माँ केवल बहुत ही सुंदर ही नहीं थी बल्कि वो हमेशा ही सुंदर रही. He compares her serene face to that of a winter landscape. वो उनके उज्ज्वले से सफेद वाले चेहरे को किसके साथ कंपैरिजन करते हैं? विंटर में जैसे कि स्नोफॉल हो जाता है जमीनों पर, तो चारों तरफ स्नो दूर तक दिखाई देती है, तो अपने दादी के चेहरे को उस विंटर के सीन से कंपेयर करते हैं. ग्रैंडमदर woke him up in the morning, plastered his wooden slate, prepared his breakfast and escorted him to school. जब काफी समय तक राइटर अपने दादी माँ के साथ गांव में रहे और उनकी जिस दौरान वो अपनी दादी माँ के साथ गांव में रहते थे, उस दौरान उनकी दादी माँ उनको सुबह सुबह उठा दिया करती थी. सबसे पहला काम क्या होता था, जो पहले के समय में क्या होता था, एक स्लेट, अभी भी हम लोग नर्सरी क्लास में पढ़ने जाते हैं तो एक स्लेट लेकर के जाया करते हैं. बच्चे जो नर्सरी क्लास में जाते हैं तो अपने साथ एक स्लेट लेके जाते हैं, तो उस स्लेट को कलर करती थी, ब्लैक करती थी. उनका ब्रेकफास्ट सुबह का बनाती थी, जैसे कि उनके ब्रेकफास्ट में क्या हुआ करता था, स्टीम चपातीज, घी एंड शुगर, ये सब ब्रेकफास्ट में. और उनको अपने साथ कहाँ पे लेके जाती थी? स्कूल लेकर के जाती थी, उनके जो जहां पर वो पढ़ाई करते थे राइटर यानी कि खुशवंत सिंह. While he studied alphabets, she read the scriptures in the temple attached to the school. On their back
स्कूल, जब तक राइटर वहां पर बैठ करके स्कूल में बैठ करके अल्फाबेट्स को पढ़ा करते, यानी जो भी अल्फाबेट्स उनको पढ़ाए जाते थे स्कूल में, यानी जिस भी तरीके की जो भी पढ़ाई उनके साथ होती थी, वो पढ़ाई जब तक वो करते थे उस समय तक उनकी दादी माँ मंदिर में बैठ करके, जो कि स्कूल से एकदम सटा हुआ था, वहां पर बैठ करके ग्रंथों को पढ़ा करती। On their way back home, she fed stale chapatis to stray dogs. जब वो वापस घर की तरफ लौटते राइटर अपनी दादी माँ के साथ में, तो दादी माँ उनकी अपने साथ कुछ बासी चपातीस लेके गई रहती हैं, और तो वो रोड चलते हुए, जो रोड पे चलते हुए डॉग्स रहते हैं, उन डॉग्स को चपाती देती हैं खाने के लिए। इस तरीके से द टर्निंग पॉइंट इन देयर रिलेशनशिप केम व्हेन दे वेंट टू लिव इन सिटी। अब एक मोड़ आता है, एक अनोखा मोड़ आता है जो उनके रिलेशनशिप को एकदम से बदल करके रख देता है। और वो कब आता है? जब वो दोनों दादी माँ और राइटर, जब ये दोनों लोग शहर की तरफ जाते हैं रहने के लिए, जहाँ पे राइटर के मदर फादर रहते थे, वहां पर जाते हैं रहने के लिए, तो एक अजब सा मोड़ आ जाता है। नाउ ऑथर वेंट टू अ सिटी स्कूल इन अ मोटर बस एंड स्टडीड इंग्लिश, लॉ ऑफ ग्रेविटी, आर्किमिडीज प्रिंसिपल एंड मेनी मोर थिंग्स व्हिच शी कुड नॉट अंडरस्टैंड एट ऑल। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, जब राइटर सिटी वाले स्कूल में आते हैं तो यहाँ पर क्या होता है, पहले तो दादी माँ उनको स्कूल तक पहुंचाया करती थी पैदल, लेकिन अब सिटी में आ जाते हैं तो सिटी के स्कूल में आने पर वो इंग्लिश मीडियम कॉन्वेंट स्कूल में उनके एडमिशन हो जाता है। यहाँ पर स्कूल की बस आती थी राइटर को ले जाने के लिए, और जहाँ पर इंग्लिश पढ़ाया जाता था राइटर को, लॉ ऑफ ग्रेविटी पढ़ाया जाता था, आर्किमिडीज प्रिंसिपल पढ़ाया जाता था। तो ऐसी सब चीजें, जो काफी सारी चीजें थी जो पढ़ाई जाती थी और जो कि दादी माँ को बिल्कुल समझ में नहीं आती थी। और जब दादी माँ को ये समझ में नहीं आता, तो दादी माँ was saying this all things are worst, these are nothing, you are studying bullshit। मीन्स दादी माँ के अनुसार जो राइटर पढ़ाई इस समय सिटी में कर रहे थे वो सब बेकार थे, वो सब किसी काम के नहीं थे। Grandmother could no longer accompany him to school nor help in his studies। अब दादी माँ ज्यादा देर तक उनका साथ नहीं दे पाती थी, और ना ही उनके साथ उनको स्कूल छोड़ती थी, ना स्कूल ला सकती थी, और ना ही अब उनकी पढ़ाई में मदद कर सकती थी। She was upset that there was no teaching of God and scriptures at city school। वो इस बात को लेकर के बहुत ज्यादा दुखी हो जाती हैं कि अब शहर के स्कूलों में भगवान के विषय में कोई पढ़ाई नहीं है, ग्रंथों के विषय में कोई पढ़ाई नहीं है। Instead he was given music lesson which according to her was not meant for gentle folk। इसके अलावा इसके अवज में उनको क्या मिलता था? उनको म्यूजिक के लेसन्स दिए जाते थे, जो कि दादी माँ के अनुसार कुछ नहीं था, केवल और केवल एक सामान्य सा बोले जाने वाला, रीत रिवाजों के अनुसार बोले जाने वाला किस्सा रह गया था, और दादी माँ को ये काफी खराब लगने लगा था, चुभने लगा था। बट शी सेड नथिंग, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहती थी। When Kushwant Singh went to a university, he was given a separate room। जब कुशवंत सिंह विश्वविद्यालय में जाते हैं, यानी कि यूनिवर्सिटी में जब उनका एडमिशन होता है, तो कुशवंत सिंह यानी कि राइटर को एक अलग रूम दे दिया जाता है रहने के लिए, पढ़ने के लिए उसी घर में। द कॉमन लिंक ऑफ देयर फ्रेंडशिप वाज स्नैप्ड। अब यहाँ पे जब अलग रूम बन गया, तो जो एक रूम था जिसको राइटर और उनकी ग्रैंडमदर दोनों लोग शेयर करती थी, वो जो था, वो जो कॉमन लिंक था, वो पूरी तरीके से वैनिश हो जाता है, यानी अब दादी माँ के बीच में और राइटर के बीच में कोई भी लिंक नहीं रह जाता। ग्रैंडमदर रेयरली talked to anyone now। She spent most of her time sitting beside her spinning wheel, reciting prayers and feeding the sparrows in the afternoon। ग्रैंडमदर अब बहुत कम, किसी से भी बहुत कम बातें करती थी, काफी ज्यादा समय वो अपने चरखे के साथ बिताया करती, अपने प्रेयर्स बोलने में बिताया करती, और कभी कभार डेली क्या उनका था, स्पैरोस को दोपहर के समय वो दाना दिया करती थी। When the author left for abroad, grandmother did not get disturbed, rather she saw him off at railway station। जब ऑथर को बाहर, मतलब कि दूसरे स्टेट में या दूसरे शहर में पढ़ने के लिए जाना पड़ा, तो इसको जानते हुए भी दादी थोड़ा सा भी परेशान नहीं हुई, बल्कि वो राइटर को रेलवे स्टेशन तक छोड़ने के लिए जाती हैं। Seeing her old age, the narrator thought that it was his last meeting। और यहाँ पे राइटर को जब वो छोड़ने जाते हैं, तो राइटर देखते हैं उनके ओल्ड एज को, जैसे कि वो बूढ़ी बहुत ज्यादा हो चुकी थी, तो नरेटर क्या, यानी कि राइटर कुशवंत सिंह ये सोचते हैं कि उनकी दादी का ये उनके साथ आखिरी मुलाकात है।
अब उनकी दादी, उनके हिसाब से ऐसा लग रहा था उनको कि उनकी दादी ज़्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेंगी, ज़्यादा दिन शी विल नॉट रिमेन अलाइव फॉर many days. So narrator was thinking that it was last meeting with her, but contrary to his thinking, when he returned after a span of 5 years, grandmother was there to receive him. लेकिन इसके बावजूद भी जैसे कि उन्होंने सोचा था राइटर ने, जैसे कि बात की जाए उसके समकक्ष में बात जब राइटर ने किया था अपनी सोच के अनुसार, जब वो वापस आते हैं 5 साल के बाद पढ़ाई पूरी करने के बाद, तो वो जब वापस आते हैं तो देखते हैं उनकी दादी उनको रिसीव करने के लिए खुद ही स्टेशन पहुंची रहती हैं. शी सेलिब्रेटेड द ओकेजन बाय सिंगिंग सॉन्ग्स ऑफ होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स ऑन एन ओल्ड डिलेपिटेड ड्रम along with the ladies of a neighborhood. और उन्होंने, उनकी दादी माँ ने ये जो अवसर था जब उनका मतलब नाती, उनका पोता वापस आया था लौट करके 5 साल के बाद, तो जैसे कि पहले के समय में वॉरियर्स के लिए गाना गाए जाते थे, वॉरियर्स जब लड़ करके आते थे तो किस्से गाने गाए जाते थे, तो उनकी दादी माँ भी वैसे ही गाना गाती हैं और एक पुराने से पिचके हुए ड्रम को लेकर के बजाते हुए गाना गाती हैं और साथ में नेबरहुड की मतलब अगल बगल की पास पड़ोस की कई महिलाओं के साथ मिलकर के वो गाना गाती हैं, जो कि वो गाना गाती हैं जिसमें योद्धा जो है लड़ करके युद्ध भूमि से आते हैं, वैसा गाना गाती हैं. Next morning she got ill, although the doctor said it was mild fever and would go away soon. She could foresee and that her end was near. अगली सुबह वो बीमार हो जाती हैं, उनकी दादी माँ बीमार हो जाती हैं. अगली सुबह ही, राइटर के आने के अगली सुबह ही उनकी दादी माँ बीमार हो जाती हैं, जबकि डॉक्टरों ने प्रेडिक्ट किया था कि हल्का सा बुखार है, मौसमी बुखार है, तो ये जल्दी ही वापस चला जाएगा. लेकिन उनकी दादी माँ, जैसे कि फोरकास्ट होता है किसी को, अगर उनकी अंतिम समय निकट होती है तो उनको ये पता चल जाता है कि उनका अंतिम समय निकट है. माय डियर स्टूडेंट्स, मेरे ग्रैंडफादर के साथ भी ऐसा ही हुआ. जब मेरे ग्रैंडफादर को पता चल जाता है, वो भी बीमार चल रहे थे, उनको भी पता चल जाता है, मतलब अगर किसी का भी अंतिम समय निकट होता है तो मैं बता दूं आप लोगों को कि उसको पता चल जाता है. सो सेम हियर हैपेंस. राइटर की जो ग्रैंड मदर होती हैं उनको फोरकास्ट हो जाता है, उनको अपने आप पता चल जाता है और वो बताती है कि अब मेरा अंतिम समय निकट है, अब मैं ज्यादा दिन जीवित नहीं रहूंगी, ज्यादा समय जीवित नहीं रहूंगी. She did not want to waste time talking to anyone. She lay peacefully in bed, praying and telling the beats till her lips stopped moving and rosaries fell down from her lifeless finger. उन्होंने अपना और समय किसी के साथ बात करने में वेस्ट नहीं करना चला. इसके अलावा उन्होंने क्या किया, वो चुपचाप बेड पर पड़ी रही, प्रार्थना करती रही, मनकों को फेरती रही, यानी कि जो माला थे उसको फेरती रही, प्रार्थनाएं बोलती रही और तब तक बोलती रही जब तक उनके ओठ रुक नहीं गए, जब तक उनका जो माला था अंगुलियों से, बेजान अंगुलियों से नीचे गिर नहीं गया. To mourn her death, thousands of sparrows flew in and set scattered around her body. देखिए माय डियर स्टूडेंट्स, जब उनकी मृत्यु हो जाती है तो जब फनरल होता है, फनरल जब फनरल रिचुअल्स कंप्लीट करने होते हैं, वो फनरल रिचुअल्स कंप्लीट करने के टाइम कई सारे हजारों स्पैरोज उनके अगल बगल आ करके चारों तरफ फैले रहते हैं उनके बॉडी के. क्यों? क्योंकि दादी माँ रोज उन स्पैरोज को दाना दिया करती थी. There was no chirping, and when Kushwan Singh's mother threw breadcrumbs to the sparrows, they took no notice of the bread. They flew away quietly when the dead body of the grandmother was carried away for the last rites. और आज के समय में कोई भी चिड़ियों की चहकने की आवाज नहीं आ रही थी. और इसको देखते हुए कुशवंत सिंह की मां ने कुछ ब्रेड के टुकड़ों को तोड़ के फेंका स्पैरोज के लिए ताकि वो खाएं, लेकिन उन स्पैरोज ने उन ब्रेड क्रम्स पे कोई भी नोटिस नहीं दिया. इसके अलावा जब उनकी डेड बॉडी उठा करके लोग लेकर के जाने लगे लास्ट राइट्स के लिए, लास्ट रिचुअल्स के लिए, यानी कि दाह संस्कार के लिए, वो चुपचाप सारे स्पैरोज उन ब्रेड के टुकड़ों को छोड़ करके चले जाते हैं. सो इन दिस वे व्हाट वी गॉट द लेसन. देखिए यहाँ पर हम लोगों को समझ में आता है कि जो राइटर होते हैं वो किस तरीके से अपने, यहाँ पर राइटर बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं अपनी दादी को, तो उन्होंने ये ऑटोबायोग्राफी अपनी दादी के बारे में दी है. सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप ऑल ऑफ यू वुड हैव
understood the summary of the chapter. All of you would have liked the chapter, and if you would have liked this video, then please do like and subscribe my channel. Thanks for watching. Thank you and have a nice day ahead. For more updates, subscribe channel Community Studies Circle and press the bell icon today.